اور اب خبر تفصیل سے بارامولہ کی سبزی مارکیٹ میں آج ملیٹنٹوں نے ایک سونار پر فائرنگ کی، تاہم خوش قسمتی سے سونار اس حملے میں محفوظ رہا۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ محمد ابراہیم نامی سونار اپنی دکان میں معمول کا کام کر رہا تھا۔ اچانک چند ملیٹنٹوں نے دکان کی جانب فائر کی۔ اس وقت دکان کا شٹر صرف آدھا ہی کھلا تھا۔ اس فائرنگ میں سونار محفوظ رہا۔ اس واقعے سے علاقے میں افراتفری پھیل گئی اور لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی۔ تھوڑی ہی دیر میں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ بارامولہ ضلع میں صورتحال مجموعی طور پر پرامن رہی۔ حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں، دکانیں اور تجارتی مراکز بند رہے۔ حالانکہ شام کے وقت بازار کھل رہے تھے، تاہم شرپسند عناصر کی جانب سے حالیہ فائرنگ کے واقعات کے بعد مارکیٹ کو مکمل بند رکھا گیا۔ سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی آمد رفت دیکھی جا رہی ہے۔ پلوامہ میں کاروباری ادارے بند رہے، سڑکوں سے پبلک ٹرانسپورٹ غائب رہا، نجی گاڑیوں کی آمد رفت میں اضافہ دیکھا گیا۔ قصبہ پلوامہ میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے حساس مقامات پر پولیس اور سی آر پی ایف کی تعیناتی بدستور جاری ہے۔ اسکول اور کالج پورے ضلع میں کھول دیے گئے ہیں، تاہم طلبہ کی حاضری متاثر ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سب ضلع ترال میں مسلسل تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہے۔ وہیں قصبے میں نجی گاڑیوں کی آمد رفت کچھ حد تک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ضلع اننت ناگ میں مجموعی طور پر حالات قابو میں ہے، جبکہ سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی آمد رفت میں ماضی کے مقابلے میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تاہم مسلسل کاروباری اداروں اور دکانوں کے بند رہنے سے عام زندگی کافی متاثر ہے۔ امن و قانون کو بحال رکھنے کے لیے لگاتار فورسز کی اضافی تعیناتی بھی کی جا رہی ہے۔ ادھر لگاتار ٹرین خدمات کے بند رہنے سے بھی عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ بقیہ حصوں کی طرح انٹرنیٹ خدمات کے متاثر رہنے سے بھی لوگ پریشان ہیں۔ ضلع کلگام میں تمام کاروباری ادارے بند رہے، جبکہ نجی ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ اس بیچ اسکولوں میں حاضری نہ کے برابر ہے، جبکہ ضلع میں بندش کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہے۔ ضلع کے تحصیل صدر مقامات اور سب ڈویژن میں بھی ہڑتال کی اطلاع ہے، تاہم ضلع میں مجموعی طور پر پرامن حالات اور قابو میں ہیں۔ ضلع سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں کشمیر کے انچارج اویناش رائے کھنہ کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں غیر ریاستی باشندوں کی ہلاکت ملیٹنٹوں کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی حرکات سے ملیٹنٹ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ قانون ویوستھا کو بنائے رکھنے میں بالکل سیریس ہے، لیکن جس ڈھنگ سے ایک سیب وپاری مارا گیا اور دوسرا انجرڈ ہے، اور دونوں میری اسٹیٹ کے پنجاب کے ہیں، یہ ایک آتنک وادیوں کا ہتاشا پورن قدم ہے۔ وہ ہتاش ہو چکے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان انوسینٹ کلنگ کو کر کے اپنی ہتاشا کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے ان سبھی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور بہت جلدی جب پکڑے جائیں گے جب مارے جائیں گے۔ میں آپ کے دوارا سبھی سیب وپاریوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ سرکار کسی طرح کا بھی اس لا اینڈ آرڈر میں کوئی بھی کوتاہی نہیں برتے گی۔ جس ڈھنگ سے پیسفلی ہم نے 72 دن نکالے ہیں، 73 دن نکالے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے سرحدوں پر کی جا رہی بلاشتعال گولہباری پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں اویناش رائے کھنہ نے کہا کہ بھارتی فوج پاکستان کی ان ناپاک حرکات کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے اور پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی ہے، لیکن اگر پاکستان سیز فائر توڑتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ہمارا فرض ہے، اور بخوبی ہم لوگ جواب دے رہے ہیں، اور پاکستان اس بات سے ڈرا ہوا بھی ہے۔ سرکاری احکامات کے باوجود کشمیر کے نجی اسکولوں کا انتظامیہ والدین سے بس فیس وصول کر رہا تھا۔ نیوز 18 اردو کی جانب سے اس معاملے کو مسلسل اجاگر کیا جا رہا ہے، اور آج ڈویژنل کمشنر کشمیر کے دفتر سے جاری کردہ آرڈر ہمارے ہاتھ لگا، جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اسکول انتظامیہ بچوں سے بس فیس وصول نہ کرے۔ واضح ہے کہ مختلف اسکولوں کا انتظامیہ ایسے کسی آرڈر کے جاری ہونے سے انکار کر رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہمیں ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن سے یہ آرڈر حاصل ہوا ہے۔ یہ ڈویژنل کمشنر کشمیر کے آفس سے
ऑर्डर इरसाल हुआ है वहाँ से इसमें साफ लिखा गया है कि निजी स्कूल उस अरसे के लिए कोई भी बस फीस का तकाजा नहीं कर सकते जिस वक्त के लिए, जिस अरसे के लिए वो बंद रहे। ये इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा गया है। मैं कैमरा से कहूँगा कि वो इस इबारत को जहाँ पे ये साफ लिखा गया है कि बस फी इज़ नॉट टू बी चार्ज बाय स्कूल्स फॉर द टाइम पीरियड दीज रिमेंड क्लोज। अभी जो हमें इसमें एक अलग बात ये है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, इन्होंने इसे इंडोर्स किया है, यानी इस पर अपनी मोहर लगाई है और इसे जो सीईओज हैं, ज़िला एजुकेशन अफसरान हैं, उनसे कहा गया है, उनको ये भेजा गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन ऑर्डर में जो दिलचस्प बात यह है कि इसमें कहा गया है डीसी से, यानी जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर है उनसे कहा गया है कि वो इस पे अमल करवाएं। यानी ये जो ऑर्डर हुआ है इस पे अमल जो करवाना है ज़िला तरक्याती कमिश्नरों को। इसमें लिखा टाइम पीरियड जो है वो तो नहीं लिखा है, क्योंकि स्कूल, अगर हम स्कूल बसेस की बात करें तो वो अभी भी ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर हम इसको अंदाज़ा लगाएं तो फिर ये 5 अगस्त से अभी तक कोई भी किसी भी निजी स्कूल की बसेस काम नहीं कर रही है, वो बच्चों को ले जा नहीं रही हैं या स्कूल में वो उनका ऑपरेशन नहीं है। उस हिसाब से ये तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा का अरसा आता है। लेकिन हमें जो अभी अभी मालूम हुआ है ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर से, वो ये है कि 2 महीने की जो बस फीस है वो नहीं देनी है वालिदैन को। और अब ये न्यूज़ 18 उर्दू ने पिछले तकरीबन उसी दिन से 2 अक्टूबर से इस मामले के पीछे लगी हुई है। जब ऐलान हुआ था, डिविजनल कमिश्नर ने 2 अक्टूबर को ये ऐलान किया था। पहले उन्होंने ये कहा था कि बस फीस के साथ साथ ट्यूशन फीस भी नहीं देनी है, लेकिन बाद में गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने इसमें तरदीद की थी और न्यूज़ 18 उर्दू के साथ ख़ास बातचीत में उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो बस फीस है वो माफ़ कर दी गई है। और उसके बाद से इस ऐलान के बावजूद उन्होंने तंबीह भी की थी, उसके बावजूद जो निजी स्कूलों की इंतज़ामिया है वो मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन अब चूंकि ऑर्डर साफ तौर पे हमारे हाथ में है और अब वालिदैन या इसरार कर सकते हैं, इस ऑर्डर का हवाला दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अब जो निजी स्कूलों की इंतज़ामिया है उन्हें इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए और वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहिए। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर कई वालिदैन ने न्यूज़ 18 की काविशों को सराहा है और सरकार से अपील की है कि बस फीस तब तक माफ़ की जानी चाहिए जब तक ये सर्विस बच्चों को मैसर नहीं हो जाती। खैर मकदम करता हूँ उर्दू न्यूज़ 18 का कि इसकी वसादत से हमें पता चला है आज, क्योंकि आपके हाथ में सर ये ऑर्डर्स भी है। पहले स्कूल वाले हमें मानते नहीं थे, जब स्कूल क्लोज भी थे हम समझते कि आप स्कूल जाते थे, कोई भी काम के लिए जाते थे स्कूल, वो नहीं मानते थे, ना ट्यूशन फ़ी के बारे में मानते थे ना बस फीस के बारे में मानते थे। लेकिन हम तो आज वेलकम ही करते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जब तक स्कूल क्लोज रहेगा तब तक, यानी बसें जब तक नहीं बिल्कुल तब तक वो फीस माफ़ होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े स्कूल है सर, ये जो एडमिशन के नाम पे लाखों रुपए लेते हैं, एडमिशन के नाम पे लाखों रुपए लेते हैं। क्या एडमिशन फी हर ईयर से इनको इंक्रीज ही होता है सर। अगर इस साल ये लाख लेते हैं, अगले साल ये 1,10,000 रुपये मांगते हैं, तो क्यों नहीं ये मतलब उन ड्राइवरों को उनमें से तनख्वाह नहीं दे सकते हैं? गवर्नमेंट भी इस पर संजीदा नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो बच्चों को देखें, बच्चे तो घर पे हैं, ट्रांसपोर्ट तो नहीं चलता है, ट्यूशन तो नहीं चलता है। कम से कम मेरे अंदाज से, जहाँ तक मेरा, वैसे तो वालिदैन मेरा कहना है, इन बच्चों से न ट्यूशन फीस लिया जाए न ट्रांसपोर्ट फीस लिया जाए। अगर इनसे 1 पैसा भी लिया जाता है तो यहाँ सरासर इनके साथ ज्यादती और नाइंसाफी है। जी, पिछली 2 बार उन्होंने हमें असाइनमेंट दे दिए वहाँ से। उन्होंने कहा जब हम अब सबमिट करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, वो पहले आप फ्यू डेज क्लियर कीजिए अक्टूबर तक, जबकि अगस्त सितंबर अक्टूबर के तीनों महीने में हमारे बच्चे घर पे बैठे थे। तकरीबन हमें महीने का 15,000 बनता है। चलो हमने सोचा कि टीचर तो पढ़ा, उन्होंने असाइनमेंट तैयार किए हैं, लेकिन बस फीस हम कैसे अदा कर सकते जबकि हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। आपने उनसे कहा नहीं कि
वो तो वहाँ अंदर ही नहीं छोड़ते हैं। वो बोले पहले आप यहाँ से फीस क्लियर कीजिए, फिर आप असाइनमेंट अंदर सबमिट कीजिए। यानी पूरी की पूरी बस फीस? हाँ, पूरी की पूरी बस फीस। जिला शोपियां में गैर मकामी मेवा ताजिरों ट्रांसपोर्टर्स पर हुए हालिया मिलिटेंट हमलों से जहां मेवा सनत से जुड़े अफराद में खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया था, वहीं इन हमलों के बाद अब जिला शोपियां में मेवे के कारोबार के लिए 6 महफूज रास्ते तय किए गए हैं। जुनूबी कश्मीर के शोपियां जिले को जहां सेब की काश्त के लिए कलीदी अहमियत हासिल है, वहीं इस सनत का कारोबार मुतासिर करने के लिए मिलिटेंटों की जानिब से हाल ही में किए गए हमलों के बाद अब हुकूमत ने जिले में 6 ऐसे रास्ते मुंतखब किए हैं जिनके जरिए मेवा काश्तकार अपना मेवा महफूज तरीके से लाकर शोपियां की मंडी तक पहुंचा सकते हैं। मिलिटेंट हमलों के बाद पूरे जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिन महफूज रास्तों को हुकूमत ने चुना है उन पर सिक्योरिटी सख्त की गई है। ताहम हुकूमत ने गैर मकामी मेवा ताजिरों और ट्रांसपोर्ट को देही इलाकों में नकलो हरकत करने पर एडवाइजरी जारी की है। डीसी शोपियां ने कहा कि इसका मकसद जिले में मेवे के कारोबार को अहसन तरीके से अंजाम देना है। यहाँ पे हमने एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स टेकअप किए हैं, कुछ सेफ जोन्स बनाई हैं जिधर लोडिंग फ्रॉम स्मॉलर व्हीकल्स टू लार्जर व्हीकल्स जो ट्रक्स वगैरह हैं उसमें बरकरार चल रही है और ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन ऑल दीज लोकेशंस एंड वेरियस स्पॉट्स। इसके अलावा हमने तमाम जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन वाले थे हमारे लोकल्स और कुछ ट्रेडर्स जो बाहर से आए हुए थे और इनके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन थी, इनके साथ एक डिटेल्ड मीटिंग की थी कल, जिसमें इन हमलों से पैदा हुए काफ़ी कंसर्न्स जो थे इनके वो हमने डिस्कस किए और उनको हमने पूरा यकीन दहानी दिलाई कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, कोई पैनिक की बात नहीं है। ट्रेडिंग और लोडिंग डिटेल नहीं हुई है, लोग बिल्कुल ज़ोरों शोरों से लोडिंग कर रहे हैं। ऑनगोइंग नाफेड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो न्यू मंडी अगलर में चल रही है, उधर रिस्पांस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमारी प्रोक्योरमेंट 30,000 पेटियों को क्रॉस कर चुकी है और साथ साथ में जो प्रोक्योर्ड माल है वो इवैक्यूएट भी हो रहा है और लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली उनका जो रकम थी मिलनी थी उन्हें वो भी डाली जा रही है। तो मेरे ख्याल से इन अटैक से कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है और एप्पल सीजन बिल्कुल जोरों शोरों से यहाँ चलता रहे। मेरा बस यही मैसेज रहेगा कि अवाम इन हमलों से बिल्कुल नहीं डिमोटिवेट हो, किसी भी अफवाहों को यकीन मत करें, किसी तरीके का डर या शिकवा मत रखें दिमाग में। हर साल की तरह इस साल भी बेशक हम अपना एप्पल क्रॉप सेफली और सिक्योरली इवैक्यूएट करें। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में पैदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने वादी में मेवे के कारोबार के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की, जिसके तहत जिला शोपियां की अगलर फ्रूट मंडी में भी सेंटर कायम किए गए। अगलर फ्रूट मंडी में स्कीम के तहत चल रहे कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। Visited the Sofia Mandi and it has been observed that the quality of the apple is very good and Sofia quality is considered as one of the best qualities in India and there was a good response from the apple growers and that response is increasing day by day and the only problem, the stocks which have already been procured is not been evacuated and for which this DC has ensured that in a couple of days they will make all the arrangements for the safe evacuation of the stocks and I request all the growers to take the advantage of this scheme and the payment of the same will also be released at the earliest. जिला शोपियां में बेशतर आबादी मेवा सनत से ही वाबस्ता है। यहाँ की मईशत में मेवे का रोल काफी अहमियत का हामिल है। हुकूमत की जानिब से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और अब मेवा सनत से वाबस्ता अफराद के लिए सेफ पैसेज कायम करने से मेवे का कारोबार दोबारा पटरी पर लौट आया है। न्यूज़ 18 के लिए शोपियां से बिलाल खां की रिपोर्ट। वक्त एक